بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ یقین خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم پڑھیں گے ایک نیا سبق۔ آپ کے سبق کا عنوان ہے، آج کا ہم جو پڑھیں گے وہ ہے مکالمہ۔ آج ہم مکالمے کے بارے میں پڑھیں گے کہ مکالمہ کسے کہتے ہیں اور مکالمہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے مکالمہ۔ پہلے ہم پڑھیں گے مکالمہ کسے کہتے ہیں۔ کی باہمی بات چیت کو کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ جتنے بھی لوگ آپس میں بات چیت کریں اسے کہتے ہیں مکالمہ۔ اس بات چیت یا گفتگو کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ اس گفتگو سے ہم ایک دوسرے تک اپنے دل کی بات پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یعنی مکالمہ جب ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کوئی بھی عنوان ہو اس کے بارے میں اپنے خیالات، یعنی ہر انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ہر انسان کے اپنے دل کی بات ہوتی ہے، وہ دوسرے انسان تک پہنچائے جاتے ہیں اور دوسرے انسان کے خیالات سنے جاتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے خیالات آپس میں بتائے جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مکالمہ۔ مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی۔ زبانی ہم آپس میں ویسے ہی بات چیت کریں یا لکھ کر بات کریں۔ تحریری کہتے ہیں لکھنا، یعنی لکھ کے بھی ہم مکالمہ کر سکتے ہیں اور ہم زبانی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی سے ایک دوسرے کے جوہر اور کردار کا پتہ چلتا ہے اور کسی کردار کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یعنی جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا انسان کا کردار کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے۔ جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں، جس طریقے سامنے والا انسان لفظوں کو استعمال کرتا ہے، شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے کہ انسان کا کردار کیسا ہے۔ تو کس طریقے سے کون سے عمدہ الفاظ استعمال کر رہا ہے یا خراب الفاظ استعمال کر رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، کوئی بھی آپس میں بات کر رہا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا کردار کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے۔ یہی مکالمات ڈرامہ، ناول اور افسانے کی جان ہے۔ اب دیکھیں، آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، اس میں کردار ہوتے ہیں، کردار آپس میں جو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ سب، ان کا جو لکھنے والا ہوتا ہے، ان کو رائٹر اس سے ان کو لکھ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس نے کس وقت کون سی بات کرنی ہے، تو اسی کے بنا پر ڈرامہ بنتا ہے۔ اب ڈرامے کی، افسانے کی جان، یعنی افسانہ اور ناول میں جو ہمیں کہانیاں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کردار ہمارے سامنے ہیں، کیونکہ اس میں لکھا اس طریقے سے گیا ہوتا ہے، بالکل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ ڈرامے میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے اسکرین، ٹی وی کی اسکرین پہ کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو مکالمہ جو ہوتا ہے کسی ڈرامے، ناول اور افسانے کی جان ہوتے ہیں۔ افسانہ اس پہ منحصر کرتا ہے کہ ڈرامہ کتنا اچھا ہے، کتنے اچھے اس کے مکالمات، کتنے اس کے ڈائلاگس ہوں گے۔ انہی کامیابی سے ناول، افسانہ اور فلم وغیرہ کامیابی کی شہرت پھیلتی ہے اور انہی سے ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انہی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناول، افسانہ، فلم وغیرہ کی کامیابی سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ کتنی اچھی فلم ہے، کتنا اچھا ڈرامہ ہے، کتنی اچھا افسانہ ہے۔ جتنے اچھے اس کے مکالمات ہوں گے اتنا ہی اس کی قدر و قیمت بڑھے گی، اس ناول، ڈرامے، فلم وغیرہ کی۔ تو مکالمہ جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی فلم، ڈرامہ یا ناول وغیرہ کے لیے۔ رکھنا پڑتا ہے، یعنی مکالمے میں ہم ایک قدرتی، ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں یا پھر ہم مصنوعی لکھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن لکھتے ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے آس پاس کے ماحول کا اور حالات کا۔ روزمرہ بول چال اور لب و لہجہ کے ساتھ اشارات ایک اچھے مکالمے کی جان ہے۔ اب دیکھیں، ہم اس میں سادہ زبان الفاظ استعمال کرتے ہیں، بہت مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا کہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے، اور لب و لہجہ، اشارات، اور بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ نے بیٹھتے ہوئے یہ بات کرنی ہے، کھڑے ہو کے بات کرنی ہے، غصے میں بات کی ہے یا محبت سے بات کی ہے، یہ سارے اشارات بھی ساتھ مکالمے میں لکھے جاتے ہیں۔ الجھاؤ اور تکلفانہ گفتگو مکالمے کو بے مزہ کر دیتی ہے، یعنی بہت مشکل الفاظ استعمال کریں،
बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करो तो उसमें मुकालमे का मज़ा नहीं आता, यानी मुकालमा वो बेजान हो जाता है, वो मज़ा नहीं आता पढ़ने वाले को ना सुनने वाले को। ख्याल रखना चाहिए गुफ्तगू को शराफत व तहजीब के दायरे से बाहर कदम ना रखे, और इस बात का ख्याल रखना है लिखते हुए कि गुफ्तगू करते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल करें उसमें बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल ना हो, यानी गालम गलोच वगैरह ना हो। हमने शराफत और तहजीब के दायरे में रहते हुए बात करनी है। मुखातिब के मर्तबे और दर्जे का ख्याल रखा जाए। अब जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी उम्र, उसका दर्जा, यानी अगर आप कोई बड़ा अफसर है उससे कैसे बात करनी है, अपने छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी अपनी उम्र और उसके दर्जे का ख्याल रख के बात करनी है। ज़रूरत के मुताबिक इशारात के साथ आवाज़ की नरमी, सख्ती, उतार चढ़ाव भी ज़ेर नज़र रहना चाहिए। इसके अलावा जहाँ आप बात कर रहे हैं आपने आवाज़ में नरमी से बात करनी है, सख्ती से बात करनी है, तेज़ आवाज़ में बात करनी है, आहिस्ता आवाज़ में बात करनी है। ये सब चीज़ें मुकालमे में देखी जाती हैं। गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती आए, यानी गुफ्तगू आपने ऐसे करनी है कि सामने वाले से कोई ना कुछ उसका जवाब दे। अगर आपने बात ही ख़त्म कर दी तो मुकाबला बढ़ेगा ही नहीं। तो लिखते हुए भी आपने इस बात का ख्याल करना है गुफ्तगू ऐसी हो कि आगे से आगे बात निकलती रहे। एक ही बात बार बार दोहराने से गुफ्तगू में फीकापन पैदा हो जाता है, यानी एक ही बात अगर आप बार बार दोहराते रहें तो गुफ्तगू करने मज़ा नहीं आता, गुफ्तगू फीकापन पड़ जाता है। वो मज़ा नहीं आता कि सुनने वाले इसको सुने या पढ़ने वाला इसको पढ़े। ज़ुबान का रोज़मर्रा के मुताबिक होना ज़रूरी है। पहले आपको बताया कि ज़ुबान का आपने वो अल्फाज इस्तेमाल करने जो आप रोज़मर्रा में, जो आप रोज़ाना अपने घर में बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। बहुत मुश्किल तकल्लुफ़ाना बातें इस्तेमाल नहीं करनी जिससे पढ़ने वाले को और सुनने वाले को मज़ा ना आए। ज़ुबान जिस कदर रोज़मर्रा के मुताबिक होगी उतनी मुअस्सर होगी, मुअस्सर कहते असर करेगी। अगर यानी आप कोई पैगाम दे रहे हैं किसी मुकालमे में, ड्रामे में, फिल्म में, अगर वो बहुत सादा अल्फाज में बयान करेंगे तो सुनने वाले को, पढ़ने वाले को समझ आएगी और वो असर करेगी। जबकि अगर आप उसको बहुत मुश्किल अल्फाज में इस्तेमाल करेंगे तो ना किसी को समझ ही नहीं आएगी, तो उस पर असर कैसे करेगी। अब आपको मैं कुछ मुकालमे दिखाती हूँ। पहला है हमारा मुकालमा है नौजवानों में इंटरनेट का रुझान, कि नौजवान नस्ल जो इंटरनेट को किस तरह क्यों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। मुकालमा देखते हैं जी। पहला अब्दुल मोइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मसब, वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का। अब्दुल मोइस, ये बेटे मुकालमे में मैंने बताया ना कि मुकालमे में हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बातचीत की जाती है। अब्दुल मोइस दाखिल हुआ कमरे में, उसके सब दोस्त बैठे हुए थे, उसे सलाम के तो जवाब मिला। अब्दुल मोइस अब क्या कह रहा है, आज तो बड़ी गपशप लगाई जा रही है, करने को कुछ नहीं है आज क्या। हुरैरा, आज सुबह से इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो क्या करें। अब्दुल मोइस, क्यों, इंटरनेट के अलावा दुनिया में और काम ख़त्म हो गए हैं। मसब, काम तो ख़त्म नहीं हुए, आज कल दुनिया के सारे काम इंटरनेट के ज़रिए ही तो होते हैं। अब्दुल मोइस, हाँ ठीक कहा आपने, वक्त का ज़िया, फहाशी और बिना तहकीक की खबरें फैलाना, ये सारे काम इंटरनेट के ज़रिए ही तो होते हैं। यानी अब्दुल मोइस ने कहा कि दुनिया के सारे काम जो होते हैं, उल्टे काम, वो सब इंटरनेट के ज़रिए ही होते हैं। क्योंकि अब्दुल मोइस जो है वो इंटरनेट के हक़ में नहीं है, बाकी उसके दोस्त बहुत ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। वो फारिग बैठे हुए थे क्योंकि उस दिन नेट ख़राब था। हुरैरा ने जवाब दिया अब्दुल मोइस को कि अगर आप कहते हैं सारे काम गलत काम होते हैं, लेकिन पढ़ाई भी इंटरनेट के बगैर नामुमकिन है। अब देखिए ये बात भी ठीक है। अब देखिए हम अगर इंटरनेट ना होता तो हम इस कोरोना के दिनों में कैसे बैठ के पढ़ते। ठीक है। रोमान, और जब हम पढ़ाई से फारिग हो जाते हैं तो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दोस्तों से गपशप लगा लेते हैं, और जब पढ़ के फारिग हो जाते हैं तो गपशप भी लगा लेते हैं हम। अब्दुल मोइस, जी तभी आज आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, वरना आप तो महीने एक दूसरे की शक्ल देखने का वक्त भी नहीं मिलता, सारा दिन फेसबुक पे वक्त का ज़िया करते हो। तो अब्दुल मोइस ने कहा, जी इसलिए ये देखें जब इंटरनेट नहीं था उस वक्त लोग फारिग वक्त में बैठ के आपस में बातचीत करते थे, बहन भाई बैठ के बातें करते, दोस्त बैठ के बातें करते थे। अब
इंटरनेट की बदौलत हम यहाँ बैठ के अपने दूर बैठे लोगों से बातें कर रहे हो, लेकिन जो हमारे करीब हमारे घर में लोग रहते हैं उनसे बात करने का वक्त नहीं मिलता। ठीक है अब्दुल मोइस, ठीक है कि इंटरनेट तालीम में भी मदद करता है, लेकिन मेरे दोस्तों ये सब मालूमात किताबों में भी मौजूद है, लेकिन हमने किताबों को छोड़ दिया है। लेकिन किताबों में पूरी किताब पढ़कर ढूंढना पड़ता है। अब्दुल मोइज़, ये भी सोचे ना कि एक चीज़ को तलाश करते हुए आपको और कितनी ज़्यादा मालूमात मिल जाती है कि जैसे किताब को हम पढ़ते हैं, किताब को एक लफ्ज़ ढूंढने के लिए हमें पूरी किताब पढ़ लेते हैं, तो उससे हमें कितने ज़्यादा इल्म मिलता है और बहुत सी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं हम। अब इंटरनेट पर तो आपने एक क्लिक किया, आपको जो चीज़ सही वही सामने आएगी। ठीक है, अब किताबों में उसके अलावा बहुत सी मालूमात छुपी होती है, हमें वही मिल जाती है हमें। रोमान, लेकिन वक्त भी तो बहुत लगता है किताबों में ढूंढने से। अब्दुल मोइज़, तो जो वक्त आप लोग फेसबुक पर ज़ाया करते हैं वही किताब पढ़ने में लगाएं तो कितना फ़ायदा मिले आपको। हुरैरा, लेकिन इंटरनेट के ज़रिए हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अब्दुल मोइज़, लेकिन ये भी तो देखो कि इसकी वजह से लोग अपने बहन भाइयों माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते। रोमान, ओए इंटरनेट आ गया, मैं तो चला अल्लाह हाफिज़। एकदम इंटरनेट आ गया, रोमान सारी दोस्ती गप शप छोड़ के भागा क्योंकि इंटरनेट आ गया था। यानी आजकल का नौजवान इस हद तक इंटरनेट के आदी हो चुके हैं। अब्दुल मोइस, ठीक है मुझे भी इजाज़त दीजिए, वैसे भी आप सब ने भी अपने मोबाइल लेकर बैठ जाना है। अल्लाह हाफिज़।